Example number 13. Solve the differential equation. Solve the differential equation. And that equation is x square dou z by dou x plus y square dou z by dou y equal to x plus y into z. So already it is in the standard form. Just we know that what del z by dou z by dou x is nothing but the small p, and dou z by dou y is equal to small q. So we just have to replace here. So our equation will be in the form x square p plus y square q equal to x plus y times z. And comparing it with pp plus qq equal to r, we get the value of capital P is x square, capital Q is y square, and capital R is x plus y times z. So it is not necessary always to write the value of P, Q, R. You can directly write the auxiliary equation there. हर बार आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट फॉर यू. ठीक है, आपको समझने के लिए. आप डायरेक्टली अगर कंपेयर कर पा रहे हैं, सो विदाउट राइटिंग दिस वैल्यूज you can write the auxiliary equation. So what is auxiliary equation? What is auxiliary equation? dx upon p dy upon q and dz upon r. So we just substitute the values of x, p, q, r. So our equation is dx upon x square equal to dy upon y square and dz upon x plus y times z. X plus y times z. Now, next, what? So we can see these two ratios are already separated with x and y. So no need to use here multiplier. Okay, direct. You can see here that the x term is with dx and y square term is with dy. So just taking first two ratios or solving first two ratios, taking first two ratios. मैंने उस दिन आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अभी जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, इन दैट प्रॉब्लम समवेयर वी यूज मल्टीप्लायर मेथड, और कहीं पे अगर हमको ऐसे लगता है कि हाँ नहीं ठीक है मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय सिंपली उसको हमको देख के भी हाँ वी कैन फाइंड इट सॉल्यूशन. ठीक है, तो वैसे सॉल्व करो. अब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपको पता है कि वी नीड सम एक्स्ट्रा टर्म्स देयर. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हमको यूज करने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है अगर जरूरत नहीं है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो. ठीक है, सो टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज which are these? So dx upon x square equal to dy upon y square. तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy upon y square plus constant of integration, and that is c1 plus constant of integration c1. Now what is the integration of dx upon x square? यहाँ पे एक बता देती हूँ मैं.
कि 1/x² को हम लिखेंगे x⁻⁻2 dx, x⁻⁻2 dx, ठीक है. And we apply the formula for integration of x⁻n, which is x⁻n plus 1 upon n. ठीक है. So what will be the integration of x⁻⁻2? x⁻⁻2 plus 1 upon -2 plus 1, which is x⁻⁻1 upon -1, which is nothing but the minus of 1 upon x. x इनवर्स को x⁻⁻1 को अगर 1 by x लिख सकते हैं, और ये जो -1 है ये माइनस आ गया यहाँ पे. अंडरस्टूड. सो इसका इंटीग्रेशन दोनों सेम है, दोनों को यही फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. सो हियर integration of dx upon x² will be minus of 1 by x is equal to minus of 1 upon y, minus of 1 upon y is equal to c, is equal to, sorry, not equal to what, plus c1, plus c1. And you can write just by -1 upon x. इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 upon y, plus 1 upon y equal to c1. or in the textbook it is given 1 upon x minus 1 upon y is equal to some minus of c1, which will be replaced by some c constant. ठीक है. You can keep this also, means 1 upon minus 1 upon x plus 1 upon y equal to c1, ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. ठीक है. But let's see that 1 upon y is equal to c, and this is our first solution. So now next, अब जो second solution है, so we need some extra changes there. ठीक है. So you know that this x can be written as 1 upon x. सही है. Simply whenever x is in the numerator, that x can be written as 1 upon x, so that this 1 upon x मतलब ये 1 upon 1 हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर में 1 upon x है उसका रेसिप्रोकल होके ऊपर जाता है. तो so this is nothing but the x. So instead of writing this only x, we write this 1 upon x. Okay. So what is our original equation? ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा? dx upon x square equal to dx upon x square equal to dy upon y square plus, no sorry, not plus, equal to what, dz upon z into x plus y. So this equation, this expression can be expressed. देखो हम कैसे इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है. How to express this equation? dx upon x, and this is upon x. अभी इसको ये जो था dx upon x square को लिख रहे हैं. How to write dx upon x? तो इसको ऐसे लिखा तो ये इसके इक्वल होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है. इस x के नीचे 1 दे दो आप, कुछ नहीं है तो. ठीक है. and this is dx upon x, and this will be 1 upon x, so this will be again dx upon x square. So you can write. Understood? ठीक है. So this dx upon x we
are expressing as dx upon x upon x. ठीक है. Now next, equal to, again this dy upon y is there, so dy upon y and upon y, same. ठीक है. And instead of writing this z, नीचे लिखने के बजाय हम dz अपॉन z और अपॉन में देंगे इसको 1 x प्लस वाई, जो बचा हुआ है x प्लस वाई. ठीक है. यहाँ पे जो x स्क्वायर था उसको x x ऐसे दोनों स्प्लिट कर दिया था, y स्क्वायर था तो y y स्प्लिट कर दिया था. अब यहाँ पे z और x प्लस वाई है, तो z इसके साथ ले लिया ऊपर में और x प्लस वाई को वैसे ही रहने दिया. ठीक है. So in this way we need to write that equation. So जो हमारा एक्सप्रेशन था, जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन था, उसको हमने कैसे लिखे हैं. अपना इक्वेशन जो बना है वो dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन z अपॉन x plus y. And now you can see that using 1 and -1 as a multiplier, कौन कौन से नंबर्स यूज कर रहे हैं हम. 1 एंड एक 1 ज्यादा हो गया क्या. 1 and -1. So what this dx upon x, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so dx upon x, same x, here also we multiply with 1 plus dy upon y plus y, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से. ठीक है. -1, so here will be minus of dz upon z, and जो नीचे है वो minus of x plus y. And you can see this plus x and this minus x, this plus y and this minus y, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा नीचे में 0. And we get each fraction will be equal to dx upon x plus dy upon y minus dz upon z equal to 0 upon 0. And its final solution मिलेगा on integrating this above equation. So we get integration of dx upon x plus integration of dy upon y and minus of integration dz upon z equal to, sorry, not 0, क्या आएगा, कांस्टेंट. ठीक है. याद रखना है कि whenever we integrate we use constant, and I know that all the terms will be in the form of log, so I take that constant some log of c2. ठीक है. So integration of dx upon x is log x plus integration of dy upon y is log y. ये तो याद हो गए होंगे अभी तक. And log z equal to log of c2. इसको log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो we can write this log of x times y. ठीक है. log of z equal to log c2. and इसको फिर से log की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं तो we get log xy upon z equal to log c2. And now this log can be removed from both sides and we get the solution xy upon z equal to c2. Okay, and this is our second solution.
This is our second solution. And combining solution 1 and solution 2 to write the final solution. Therefore, the final solution is f of 1 upon x minus 1 upon y, comma, xy upon z equal to 0. This is the final solution. Okay, so now next एग्जाम्पल नंबर 14 थोड़ा सा अलग है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है. ठीक है, इन एग्जाम्पल नंबर 14 व्हाट इज देयर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. थोड़ा सा ध्यान दो, प्रॉब्लम अलग है. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of x into dou z by dou x plus y into dou z by dou y plus t into t into dou z upon dou t equal to x y t. अभी आप बोलेंगे कि मैडम ऐसा एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है. सो जो हमने अभी आगे जो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, इन दैट केस योर z वाज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट वाज डिपेंडेंट ऑन x and y, only two variables. And now here how many variables are there? X, y, z and t. X, y, z and t. And in this you can see that z is dependent variable and it depends on x, it depends on y and it depends on t. So independent variables, how many independent variables? 3. अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे? सिर्फ 2. ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ चेंजेस होंगे वहां पे. तो यहाँ पे हम ऐसे पी क्यू आर वगैरह कुछ लेंगे नहीं, बिकॉज दैट वाज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, सो हियर वी राइट डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन solution. We write direct auxiliary equation. We used to write no dx, dy and dz. ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल फिर से बढ़ा देंगे, यहाँ पे dx, dy, dt और dz ऐसे कर देंगे. ठीक है, बस सिंपली यही चेंजेस होंगे. सो what will be auxiliary equation? Auxiliary equation will be dx upon dy upon and dt upon and finally जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो. ठीक है, सो dx means dx upon x, dy upon y, dt upon t and dz upon में क्या आएगा? x y t. ठीक है, so this is auxiliary equation and you can see very simple by comparing any two ratios here. हाँ, one more thing, यहाँ पे जैसे 2 वेरिएबल्स थे ना, जो इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स थे, तो हमने यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले थे. महेश उसको ये करो, एनोटेट करना बंद करो. यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले थे. ठीक है, एंड नाउ वी हैव हियर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो हियर वी विल फाइंड 3 सॉल्यूशंस. डिलीट इट महेश, तुम्हारे साइड से डिलीट करो उसको. समझ में आया?
ये, तो यहाँ पे हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिल जाएगा, ऑलरेडी एक्स टर्म एंड वाई टर्म आर सेपरेटेड, y this t term is also separated, so just by comparing this first two ratios and next two ratios you will get two solutions, ठीक है। so comparing or taking or solving, कुछ भी लिख सकते हो, comparing two ratios, first two ratios क्या मिलेगा, dx upon x equal to dy upon y. So just integrating dx upon x equal to integration of dy upon y plus log of c1, its integration is log x, its integration is log y, and plus this is log c1. अभी तक तो ये तो ऐसे टर्म्स आपको याद भी हो गए होंगे, कई प्रॉब्लम्स में आए हैं, बस एक करो कि रोज का रोज लिखो, ठीक है। सो इन दिस log x minus log y, log x minus log y equal to log c1, and this is log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज log x upon y equal to log c1, and just removing this log term from here, we get x by y equal to c1. This is the first solution. Okay, first solution. Now give it equation number 1. Now solving last two equation, ठीक है, no sorry, not last two equations, solving second and third ratio, ठीक है, solving second and third ratio. So what is that, dy upon y equal to dt upon t, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ log c2, एंड फाइनली मैं सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, यू कैन सॉल्व देयर, फाइनली we can get its solution at y by t is equal to c2. कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy upon y equal to इंटीग्रेशन ऑफ dt upon t plus log of c2, and this is log y equal to log t plus log c2, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, log y माइनस log t इक्वल टू log c2, एंड फिर से log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी log of y by t is equal to log of c2, and just removing this log you will get this solution, and this is your expression number 2. तो जैसे कि मैंने बताया था, कितने सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है, 3 सॉल्यूशंस। तो हमको नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. Now you can see the equation 1 containing x and y, this equation containing y and t, लेकिन हमको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें z हो, ठीक है, जहाँ पे z हो। तो ना थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस की जरूरत होगी वहां पे, ठीक है। सो व्हाट इज आवर ओरिजिनल इक्वेशन, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y इक्वल टू dt अपॉन t इक्वल टू dz अपॉन x y t, ठीक है। so that was the solution, sorry, that was the equation जो अपना था, ठीक है। अभी इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। so what we can do here,
अब इस इक्वेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय एक्स वाई जेड, बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। सो इफ वी मल्टीप्लाई इट विथ एक्स वाई जेड, तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x इंटू एक्स वाई टी इक्वल टू एक्स वाई टी इंटू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स वाई टी इंटू डी टी अपॉन टी, एंड दिस एक्स वाई टी इंटू डी जेड अपॉन एक्स वाई टी। अभी आप छोटे बच्चे नहीं है कि ये सब ऐसे एक्सप्रेशंस आपको बताना पड़े, बट स्टिल आई एम टेलिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप सोचेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। सो एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से ये वाई वाई कैंसिल, ये टी टी कैंसिल, और ये पूरा एक्स वाई टी कैंसिल। तो एक्सप्रेशन में फिर बचा क्या? व्हाट इज रिमेंड इन इक्वेशन? वाई टी इंटू डी एक्स, देखो ध्यान से, वाई टी इंटू डी एक्स, फिर एक्स टी इंटू डी वाई, एक्स टी इंटू डी वाई इक्वल टू, हाँ नीचे में क्या बचा है इसके? वन, हियर ऑल्सो वन, एंड हियर व्हाट? एक्स वाई इंटू डी टी, और यहाँ पे भी वन, और यहाँ पे डी जेड अपॉन वन, डी जेड अपॉन वन। सो नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी जस्ट कंपेयर इट विथ डी जेड, नीचे में वन है तो उसको वो नहीं लेते, वो दैट वी डोंट कंसीडर दे, या फिर रख लो, ठीक है, डी जेड अपॉन वन, एंड वी जस्ट एड ऑल दिस थ्री। इट्स व्हाट, जैसे वन टाइम्स वाई टी इंटू डी एक्स प्लस वन टाइम इंटू एक्स टी इंटू डी वाई प्लस वन टाइम xy into d, means here 1 1 1 we have used as a set of multiplier, ठीक है, और तीनों को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना फिर? what will be this expression? dz upon 1, and this is yt dx plus xt dy plus xy dt upon 3, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट रूल है दो दो के लिए, वेन एवर वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस वाई एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स वाई ना होते हुए, अगर सिर्फ दो फंक्शंस ना होते हुए, अगर तीन फंक्शंस हुए तो क्या करेंगे फिर? एक्स वाई टी अगर ऐसे रहे तो इसमें लिखेंगे कि फर्स्ट टू फंक्शंस एज इट इज डी एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ थर्ड, देन पहला और तीसरा एज इट इज एक्स टी इंटू डी वाई, वाई का डिफरेंशियल, और फिर इसको लिखेंगे हम वाई टी एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। अगर तीन टर्म है तो है, ये आया है, देखो वाई टी डी एक्स, वाई टी डी एक्स, एक्स टी डी वाई है, और एक्स वाई डी टी, ये एक्स वाई डी टी है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई टी, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई टी, और ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3z 3dz, और ये इसका पूरा हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई टी। टर्म सारे सेपरेट हो गए हमारे, ठीक है। सो अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट 3z इक्वल टू एक्स वाई टी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट जाएगा वहां पे, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा +c3, दो कांस्टेंट यूज किए हमने, C1 C2
and now we are giving here C3. So this can be written as what? Z equal to this 1/3 XYT प्लस C3/3. तो इसको फिर से कोई तीसरे कांस्टेंट से सिर्फ C ले लेते हैं उसको. सो इसको लिखेंगे Z minus 1/3 into XYT equal to C. This is our third solution. और जरूरत भी नहीं है, you can keep this solution also there. ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक में बताया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, सो नाउ